हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हम सब, हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको हैप्पी रेजरेक्शन डे यानी ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। मौत फतह का लुकमा बन गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने स्लीप के ऊपर अपनी जान देकर, मर कर, जी उठकर मौत को हरा दिया, कब्र को हरा दिया और यीशु मसीह ने अबलीस के सर को कुचल दिया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं। जी गीत गाएंगे खुदावंद के वर्शिपर सैमसन स्टीव हमारे साथ हैं और इनके साथ हम गीत गाएंगे। खुदावन आप सबके साथ हो। गीत गाएंगे तेरा प्यार दिल से बुलाया ना जाएगा। आमीन हालेलुया। तेरा प्यार दिल से बुलाया न जाएगा, अब से कभी भी तुझको, अब से कभी भी तुझको Thank you, Jesus. बुलाया न जाएगा, कभी भी नहीं यीशु जी को बुलाया जा सकता। तेरा प्यार दिल से। जिंदगी में मैंने तुझको सताया है बार बार, जिंदगी में मैंने तुझको सताया है बार बार, सताया है बार बार, सताया है बार बार, जिंदगी में मैंने तुझको सताया है बार बार, सताया है बार बार, अब से कभी भी तुझको, अब से कभी भी तुझको सताया न जाएगा, तेरा प्यार दिल से, ओ तेरा प्यार दिल से बुलाया न जाएगा, तेरा प्यार दिल से। Yes Lord, thank you Jesus. तेरे सिवा किसी को न सजदा करेंगे हम, तेरे Thank you Jesus. सिवा किसी को न सजदा करेंगे हम, न सजदा करेंगे हम, दर गैर पे ये सर, ओ दर गैर पे ये आमीन सर हालेलुया। झुकाया न जाएगा, तेरा प्यार दिल से। Yes, thank you Jesus. मरना है तुझ में जीवन, जीना मेरा मसीह, मरना है तुझ में जीवन, जीना मेरा मसीह, जीना मेरा मसीह, जीना मेरा मसीह। Yes, thank you Jesus. Thank you Lord. मरना है तुझ में जीवन, जीना मेरा मसीह,
جینا میرا مسیح، یہ راز اس جہان سے، یہ راز اس جہان سے چھپایا نہ جائے گا، یہ راز اس جہان سے چھپایا نہ جائے گا، تیرا پیار دل سے، او تیرا پیار دل سے چھپایا نہ جائے گا، اب سے کبھی بھی تجھ کو، اب سے کبھی بھی تجھ کو بلایا نہ جائے گا، تیرا پیار دل سے، تیرا پیار دل سے۔ ہاللویا، تھینک یو سو مچ، خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں اور خوبصورت گیت گاتے ہیں۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، نجات دہندہ۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بن گئے ہیں مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، پاپا تو بچاون یسوع آیا جگ تے، پاپا تو بچاون یسوع آیا جگ تے، تے آن کے مٹائے انہیں پاپ سب دے، تے آن کے مٹائے انہیں پاپ سب دے۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ، آپ بھی بولیں، سب بولیں ہاللویا، ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، کوڑے کھاتے تاج کنڈے آندا پالیا، کوڑے کھاتے تاج کنڈے آندا پالیا، تے سولی اتے مردے ڈاکو نو بچا لیا، تے سولی اتے مردے ڈاکو نو بچا لیا۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، نیزا ڈاڈا او دی پسلی وچ وجیا، نیزا ڈاڈا او دی پسلی وچ وجیا، تے پاپ دھون والا اس تو چشمہ وگیا، تے پاپ دھون والا اس تو چشمہ وگیا۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، زندہ ہویا موت تے قبر نو جت کے، زندہ ہویا موت تے قبر نو جت کے، تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ تے، تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ تے۔ ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، ہاللویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا۔ تھینک یو جیسس۔ جے جے بولو مومنو مناؤ عید نو، آج سب عید منائیں، جے جے بولو مومنو مناؤ عید نو، تے دل وچ رکھو مسیح یسوع دی دید نو،
ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया आमीन हालेलुया खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इस गीत के वसीला से जिसमें हमने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी है खुदावंद को हालेलुया कहा है हालेलुया यीशु जिंदा हो गया जी भाई जुनैद आप हमारे साथ हैं आप भी खुदावंद की हमद में अपना मुंह खोलिए जी थैंक यू गॉड ब्लेस यू ओके थैंक यू सो मच बाय बाय Amen. Hallelujah. Thank you. Written by myself. Amen. La Wow. That's beautiful. la 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 वो जी उठा है तो फिर जिंदगी की बात करो Amen. वो जी Thank you, Jesus. जिंदगी की बात करो Amen. सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो सहर हुई है तो फिर रोशनी खुदावंद की तेरे साथ होगा बात जीसस करो यीशु मसीह वो तेरे साथ बहाते अपना उसने शिफा बख्शी है Amen. आके अपना उसने शिफा बख्शी है Amen. Thank you, Jesus. मोहब्बतों से जिंदगी भरती है किया जो प्यार हमें बस यही याद रखो Amen. Thank you, किया जो Jesus. प्यार हमें बस यही याद रखो सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो Amen. Thank you, Jesus. वही है जिंदा यीशु वही निजात का रास्ता किया है वादा पूरा उसने रूह कुद्दस बख्शा Amen. Very nice. जिंदा यीशु वही निजात का रास्ता Yes, thank you, Lord. किया है वादा पूरा उसने रूह कुद्दस बख्शा Amen. बता अच्छी हमें सबसे ये बयान करो बता जो बख्शी हमें सबसे ये बयान करो सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो वो जी उठा है तो फिर जिंदगी की बात करो वो जी उठा है तो फिर जिंदगी की बात करो सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो Amen. Hallelujah. सहर हुई है तो फिर रोशनी की बात करो Amen. जी Amen. Hallelujah. ज़बरदस्त खुदावंद आपको बहुत बरकत दे ज़बरदस्त भाई बहुत अच्छा आपने लिखा खुदावंद आपको बहुत और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और सिस्टर साइमा आप गाना चाहेंगी कोई गीत बताइए सिस्टर जी आप फारिग हैं
میرے خیال میں سسٹر بزی ہے میرا خیال ہے. چلیں ہم ابھی ایسا کرتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور سسٹر یاسمین آپ کے ساتھ مل کے ہم دعا کرتے ہیں. خداوند سے دعا کیجیے کلام مقدس کے لیے، اور آج کی خوبصورت دن کے لیے، برکت کے لیے، سب کی برکت کے لیے، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بعد میں بھی دیکھیں گے ان سب کی برکت کے لیے، بلیو ٹی وی کے لیے دعا کیجیے، ہر ایک چیز کے لیے دعا کیجیے. God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. خداوندوں کے Amen. خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، رب الافواج، رحیم اور کریم خدا، پیار سے بھرے ہوئے خدا، واحد خدا. خداوند بڑی شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کے پھاٹکوں میں انٹر ہوتے ہیں. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج آپ کی فتح کے دن کے لیے. Amen. خداوند Hallelujah. فتح حاصل کی ہے خداوند، اور خداوند آپ نے سانپ کے سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا. Amen. خداوند ہم Thank you, آپ کو گزاری Jesus. کرتے ہیں خداوند کہ آپ زندہ اور سچے خدا ہیں، Yes. اور آپ ہمیشہ قائم رہنے والے خدا ہیں. خداوند آج Amen. بھی جتنے افراد یہاں جمع ہے خداوند، ایک ایک جان، ایک ایک روح کو آپ کے بلڈ میں کور کرتے ہیں، سب کی صحت و تندرستی کو خداوند. اور اے خداوند جتنا آج آپ کا کلام پڑھا جائے سب کے ساتھ شیئر ہو، سب اس کے اوپر بات چیت کرے، تو خداوند ہر ایک ایک جان کو برکتیں دے، شیطان کے ہر وار سے سب کو بچائے خداوند. اور Amen. خداوند ابلیس کا ہر بار جو بھی وہ کسی کے لیے ہتھیار تیار کر رہا ہے خداوند، وہ ناکام ہو جائے خداوند، وہ ہتھیار چلنے سے پہلے ہی بیکار ہو جائے خداوند. Yes, Lord. ہم ایسا ہی ہو. اپنی کو آپ کے ہولی بلڈ میں کور کرتے ہیں خداوند، اور جتنی جانیں یہاں جمع ہیں سب کو آپ کے ہولی بلڈ میں کور کرتے ہیں. سسٹر آسٹر آپ کو آپ کے ہولی بلڈ میں کور کرتے ہیں. Yes, Jesus. اور افسر جب وہ آپ کا خوبصورت کلام، آپ کی خوبصورت آواز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تو خداوند اپنی بیٹی کو بہت برکت دینا خداوند. Amen. آج کی ساری پریئر میٹنگ پر یسوع کا مسا، یسوع کا بلڈ چاہتے ہیں، فتح کا بلڈ اور رحمتوں کا بلڈ، شفا کا بلڈ خداوند. Yes. یسوع مسیح کے وسیلے سے آج کی ساری میٹنگ بابرکت ٹھہرے اور ہر گھر میں بلیسنگ جائے خداوند، یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. ہاللویا. آمین. تھینک یو جیسس. اور بھائی ندیم آپ ذرا بائبل مقدس نکالیے گا، یوحنا رسول کی انجیل مقدس 20 چیپٹر ذرا آپ نکالیں اور پڑھنا شروع کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج یہ خوبصورت کہانی جو ہے وہ ہم سارے سنیں، اور پورے طور پہ اس کو دھیان سے سنیے، اور اس کے بعد پھر ہم کلام کے لیے ایک اور میں آپ کو حوالہ دوں گی. تو سسٹر سائمہ اگر آپ فارغ ہوتی ہیں تو مجھے بتا دیجئے. پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 چیپٹر ہے، آپ نکال لیں، پھر میں آپ کو آیات بتا دوں گی. جی بھائی جی. جی، ہیپی ریزریکشن ڈے سب بھائیوں کو. آمین. آج ہاللویا. ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. تمام جو جتنے بھی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں آج تکمیل تک پہنچی، اور خداوند نے موت پر فتح پائی. آمین. ہاللویا. ہلیلویا. تھینک یو. پورا باب پڑھنا سسٹر جی، چیپٹر 20. ہاں جی پورا چیپٹر پڑھیے، کیونکہ ساری اسٹوری ہے، اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام مقدس کو دیکھتے ہیں، اچھے طریقے سے ان اسٹوریز کو پڑھتے ہیں اس کے اسپیسیفک ڈے کی وجہ سے. جی، خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے مقدس یوحنا اس کا 20 باب. ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا. اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا. شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے. اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے. یسوع مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے. لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی ہوتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پیتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی. انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے.
ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा, रबूनी, यानी है उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब आपके पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे बातें की। आमीन। यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। यीशु और तोमा। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उनसे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। इस किताब का मकसद। और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। खुदा की जिंदा बात कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जी सिस्टर साइमा, अगर आप हमारे साथ हैं मौजूद तो फिर 1 Corinthians में आप 15 चैप्टर और उसकी 45 वर्स से पढ़ें। अगर नहीं तो फिर सिस्टर यास्मीन आप पढ़ सकती हैं, अगर सिस्टर बिजी हैं तो। पहला करंथियों, सिस्टर यास्मीन आप पढ़ लीजिए, मुझे लगता है वो बिजी हैं। हाँ जी बाजी, पहला करंथियों और उसका 15 चैप्टर है और 45 आयत से पढ़िए। जी सर जी। हाँ जी, मैं पढ़ूंगी 45 वर्स से। हाँ जी, खुदावंद के बाबरकत नाम से वर्स नंबर 45 से शुरू करते हैं। 1 करंथियों। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया। हाँ बाजी, जी, आगे भी पढ़। बिल्कुल पढ़ें, आखिर तक जाएं। बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। है भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे
मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म ख्याते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म ख्याते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबिते कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। आमीन। कलाम पाक के पढ़े जाने सुने जाने खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश और सताइश और खुदावंद ही के नाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में ये बख्शा है। और ये भी खुदावंद की ही बरकत से है, क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने आज का ये दिन देखना चाहा, मगर खुदावंद की मर्जी नहीं थी। ये खुदावंद की मर्जी से है कि खुदावंद ने आज हमें ये दिन देखने को दिया। तो हमारा सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम उसका शुक्र करें, उसके नाम की तारीफ़ करें, उसके नाम की हम्द करें, उसके नाम की प्रस्तिश करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सिताइश करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का शुक्र करें, क्योंकि वो ख़ास खुदावंद है, वो आम सा खुदा नहीं है, वो सारे खुदाओं से किससे बहुत मुख्तलिफ है। देखें, और खुदावंद यीशु मसीह का मरना भी डिफरेंट और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना भी डिफरेंट। और खुदावंद यीशु मसीह अपने सारे कामों में, अपने मोजज़ात में मुर्दों को ज़िंदा करना, कब्र को खोल देना, जैसे लाजर की कब्र को खोला और खुदावंद ने आंखें, ब्लाइंड को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, ठीक है, जो चाहते थे हवाओं को रोक देना, हर एक चीज़ में खुदावंद यीशु मसीह डिफरेंट। ऐसा कोई भी नहीं हो सका, ना कोई होगा, ठीक है, पूरी अथॉरिटी के साथ। खुदावंद हमारी दुआएं ज़रूर सुनते हैं, मगर हम जब हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं तो कभी ये नहीं होता कि हमारी वजह से हुए, यीशु मसीह की अपनी वजह से होते थे, क्योंकि वो खुदा मुजस्सम होकर ज़मीन के ऊपर आया। और यीशु जो है वो हमें अपनी कुव्वत देते हैं, हम यीशु की कुव्वत को लेकर खुदावंद के बड़े बड़े काम करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हम कलाम मुकद्दस में भी पढ़े थे, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। इतनी खूबसूरत वर्स है ये कि मैं हमेशा हर जो रेज़रेक्शन संडे या ईद क़यामतुल मसीह होता है तो मैं उसमें इसको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और बहुत ज़्यादा ये मुझे पसंद आती। मेरा दिल जो है वो खुशी के साथ भर जाता है जब मैं ये बोलती हूँ, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। क्योंकि मौत फतह मंद थी पहले, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है। यीशु मसीह ने कब्र का सीना चीर कर खुदावंद यीशु मसीह बाहर निकल आए हैं, ठीक है, और उन्होंने इसके ऊपर शिकस्त इसको दिला दी है, कब्र को और मौत को खुदावंद ने वो शिकस्त जो है वो दिला दी है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके प्यारे नाम के लिए। जो अभी आयत सिस्टर ने पढ़ी, लिखा पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। आदम जो था वो उसकी वसीला से, एक गीत मेरी मदर गाया करती थी, जो पहला है वो था गीत के, जो पहला आदमी था उसकी वजह से हम सारे गुनाह में पड़े, और जो आखिरी आदमी है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के वसीले से, यानी कि दो आदमियों के दरमियान वो गीत था, और वो गीत बड़ा खूबसूरत था। और उसमें ये था कि जो दूसरा था ना, हवा हार गई चित गया जित यीशु, जिठी अब लड़ाई मरी, ऐसे करके कुछ गीत था, बड़ा अच्छा गीत था। लेकिन ये था कि उसमें इस तरह से था कि खुदावंद यीशु मसीह जीत गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि पहला आदम था वो जिस्मानी था, वो खून और गोश्त था, लेकिन दूसरा आदम जो था वो रूहानी। खुदावंद यीशु मसीह जैसा क्यों कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि आदम जो था वो गुनाह कर सकता था, वो खुदा ने उसको बनाया था, वो कमज़ोर खुदा ने उसको बनाया था, और वो खुदा की, बेशक खुदा की प्रेजेंस में भी रहते थे आदम और हवा, लेकिन फिर भी वो बने कमज़ोर हुए थे। आदम आज हम भी
आदम हैं, हम भी कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं हम भी खुदा को नाराज़ करते हैं, खुदा को बहुत ज़्यादा हम खुदा को हर वक्त अपनी किसी ना किसी बात से, मुंह से बोली हुई बात से, आंखों से देखने से, दिल में सोचने से या दिमाग में सोचने से या दिल में जो हमारी बातें आती हैं उनसे हम खुदा को नाराज़ करते ही करते हैं, क्योंकि हम आदम हैं। और अगर हम में से सारे परफेक्ट हो जाएंगे, अगर हम में से एक भी परफेक्ट हो गया तो वो खुदा फिर बन जाएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं रहेगा। और खुदा ने खुद हमें कमज़ोर बनाया, ठीक है। और इसी वजह से जो पहला आदम था उसने लालच में आकर, अबलीस के लालच में आकर, अबलीस ने हवा को क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर तू ये फल खाएगी तो खुदा की मानद हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लालच था जो अबलीस ने हवा को दिया था कि तू नेक और बद की पहचान करने वाली और खुदा की मानद हो जाएगी। तो जब खुदा की मानद किसी को कह दिया जाए तो वो हवा ने सोचा होगा कि क्यों ना मैं खुदा की मानद, क्योंकि जब खुदा ठंडे वक्त में बाग में फिरता था तो भाग के आदम और हवा ज़रूर खुदा के पास जाते होंगे, खुश होते होंगे। तो जब एक औरत समझती होगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है अगर खुदा बनने की, तो उसने कहा होगा कि लेट्स डू इट ना। और इसी वजह से उसने खुदा के कमांडमेंट को तोड़ा और खुदा से, और उसने एक दीवार आदम और खुदा के दरमियान खड़ी कर दी। यानी कि एक गुनाह से, आप देख लें, बागे अदन में एक ही गुनाह हुआ था, डिसोबीडियंस, क्योंकि उनको कमांडमेंट भी एक ही मिला था। उनको एक कमांडमेंट मिला था, उनको 10 कमांडमेंट या पूरा कलाम मुकद्दस नहीं जैसे हमें मिला हुआ है, ऐसा नहीं था। उनको एक मिला था और उसमें उन्होंने क्या करना था? उसमें उन्होंने सिर्फ बाग के दरमियान के दरख्त का फल नहीं खाना था। और जब देखें वो अबलीस के लालच में या अबलीस के चक्कर में जब वो फंस के, जिस तरह से आज हम भी फंसते हैं किसी न किसी तरीके से, जब हम गुनाह की तरफ जाते हैं तो हम अबलीस के चक्करों में ही फंसते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम की कोई भी बात नहीं मान रहे होते, खुदा के कलाम की ऑपोजिशन जब कर रहे होते किसी भी तरह से, तो आप ये ना समझिएगा कि नहीं कोई बात नहीं, आप अबलीस को खुश कर रहे होते हैं और खुदा को नाराज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं, मेरे दिल में एकदम से आया कि मैं बहुत कुछ चीज़ों को मेंशन भी करूं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बाइबल मुकद्दस की बहुत सी बातों को पढ़ते हैं लेकिन हम उनके ऊपर अमल नहीं करते, ठीक है। जिस तरह से हम मैरिड कपल्स को ले लेते हैं, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि बीवियां जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के ताबे रहें। और आदम को कहा गया है कि तूने अपनी बीवी को ऐसे प्यार करना है जैसे तू अपने जिस्म को पालता और पोसता है। तो फिर ये चीज़ें कहाँ पे हैं? अगर हम ये नहीं कर रहे, अगर हम किसी भी तरह से अपने हस्बैंड्स को, अपने वाइफ्स को, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, अपने बच्चों को जो खुदा का हुक्म कहता है उनको नहीं सिखा रहे, या हम छोटी सी बात कहते हैं कि नहीं ये कोई बात नहीं, छोटी सी चुगली है, या छोटा सा झूठ है, छोटा सा फ्रेब अगर समझते हैं लेकिन फिर हम कर लेते हैं, तो हम खुदा के कमांडमेंट को तोड़ देते हैं। लेकिन आप देखें, एक कमांडमेंट को तोड़ने से क्या हुआ था? खुदा ने उनको अपने से जुदा कर दिया था, एक कमांडमेंट। लेकिन आप सोचिए अगर कि हम सारा दिन में कितने कमांडमेंट तोड़ते हैं, सारा दिन में हम लोग कहीं ना कहीं खुदा को नाराज़ करते ही रहते हैं, खुदा के कलाम की बातों को पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी नहीं करते, तो हम खुदा को नाराज़ करते हैं। और जब हम खुदा को नाराज़ करते हैं तो हम खुदा की प्रेजेंस से अब भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे गुनाह दूर ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे हम खुदा से दूरी करते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे गुनाह जो हैं हम गुनाहों से दूर होते जाते हैं तो हम खुदा के नज़दीक आते जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जहाँ से आपने खुदा के किसी भी एक कमांडमेंट को तोड़ा, ठीक है, आपने एक कमांडमेंट को तोड़ा, आप दूर हो गए, और तोड़ा और दूर हो गए, एक और को तोड़ा, दूर हो गए, ठीक है, अपने आप से। लेकिन जैसे जैसे आप गुनाहों के ऊपर पूरी कोशिश करके, मुझे पता है कि हम इंसान होते हुए मुकम्मल तौर पे अपने आप को नहीं रख सकते, लेकिन पूरी कोशिश करें कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो फिर हम खुदा के नज़दीक होते जाएंगे। और एक वक्त आता है जब हम खुदा के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की होती है कि हम गुनाहों की ज़िंदगी से अपने आप को ख़त्म कर लें,
ठीक है। तो इस तरह से फिर जो आदम था, बेशक खुदा ने उसको इतने प्यार के साथ बनाया था, खुदा ने उसको मट्टी से अपने हाथों से बनाया था, खुदा ने उसके ऊपर टाइम लगाया था, खुदा ने उसको अंदर से बाहर से, आप खुद देखें जब बीमार आप होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी एक नर्व में ये हो गया, नर्व्स हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज हैं, एक एक चीज़ को खुदा ने कितने खूबसूरत तरीके से, आपके दिल का एक सिस्टम है, आपके फेफड़ों का एक सिस्टम है, आपके लंग्स का, आपके किडनीज का सिस्टम है, हर चीज़ के सिस्टम्स हैं जिसको खुदा ने बनाया था। आदम के साथ खुदा ने बड़ा टाइम लगाया था उसको बनाने में ही खुदा ने, और उसके अंदर अपना दम फूंका तो उसको जीती जान किया। और उससे बढ़ के ये कि सब कुछ खुदा ने आदम के लिए बनाया था, सूरज, चांद, सितारे, खूबसूरतियाँ, जितने आसमान, ज़मीन, हर चीज़ जो आप आसमान की बुलंदियों से लेकर नीचे तक गहराइयों तक देखते हैं, हर चीज़ खुदा ने आदम के लिए बनाई थी, और आदम को खुदा ने अपने लिए बनाया था। लेकिन इसी आदम ने खुदा को नाराज़ कर दिया, और जब खुदा को नाराज़ कर दिया तो एक दीवार जो थी वो खड़ी हो गई थी बीच में। बेशक खुदा अपने आदम और हवा को की केयर ज़रूर करता था, खुदा अपने नबियों के वसीला से अपना कलाम भेजकर अपनी बातें इन तक पहुंचाता था, लेकिन खुदा इनसे दिल से खुदा जो था वो खुदा खुश नहीं थे, ठीक है। और जब खुदावन ने काफ़ी देर तक खुदावन ने अपने नबियों के वसीला से कलाम किया और बताया कि मैं अपना बेटा भेजूंगा, और खुदावन के बेटे ने, खुदावन यीशु मसीह ने ज़मीन के ऊपर आकर हमारे लिए जान देकर, कोड़े खाकर, मुंह पे थकवा कर, जैसे कि हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे यशायाह नबी के सहीफे में कि उसकी दाढ़ी नोची गई और उसके मुंह के ऊपर थूका गया, ठीक है। और हर चीज़ वो बेज़बान, जैसे भेड़ अपने कुतरने वालों के सामने बेज़बान होती है, वो वैसे बेज़बान वहाँ पे खड़ा रहा। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर मैं अभी अपने बाप से कहूँ तो वो एक बड़ी फौज फरिश्तों की भेज सकता है, और वो एक ही फरिश्ता भी काफ़ी था, इतनी फौज की तो ज़रूरत भी नहीं थी, एक ही फरिश्ता आता तो उन सबको ख़त्म कर देता। लेकिन यीशु मसीह ने खुद हमारी खातर अपनी जान दी, खुशी के साथ अपनी जान दी, हमें मुकम्मल तौर पे अपने उसमें ले लिया, ठीक है। और खुदावंद ने हमारे लिए मौत को गवारा किया, यानी कि खुदा कभी नहीं मरता, मगर मौत गवारा की खुदावंद ने, ठीक है, मौत, ठीक है। और खुदावंद को जब कब्र में रखा गया, ये खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था तो आप ये मत समझिए कि 3 दिन यीशु कब्र में रहे हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, कब्र में जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था, साथ ही खुदावंद जो थे वो आलम अरवा में पहुंचा दिए गए, ठीक है, बदन समेत। क्योंकि बदन अगर खुदावंद यीशु मसीह का कब्र में रहता तो बदन जो है वो 3 दिन में सड़ जाता। क्योंकि आपको पता होगा, हमारे पास एक स्टोरी है खुदावंद के दोस्त लाजर की, और खुदावंद के जो दोस्त लाजर थे वो 4 दिन हो गए थे उनको कब्र में। तो उनकी सिस्टर ने उनको क्या कहा था कि खुदावंद अब तो उसके अंदर से बू आती होगी, क्योंकि 4 दिन का जो मुर्दा होता है उसके अंदर से बू आना शुरू हो जाती है, वो सड़ जाता है। लेकिन आपको पता है कि 3 दिन अगर यीशु अंदर रहते तो यीशु का जिस्म भी सड़ जाता। लेकिन क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो अपने मकदस को कभी सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा, क्योंकि खुदा कभी भी उसका बदन सड़ नहीं सकता था। इसलिए खुदा ने उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखते ही जो था वो आलम अरवा में पहुंचाया गया। और आलम अरवा में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जाकर जो ऐसी रूहें थीं जो कि नाफरमान थी, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये है पहला पत्रस और उसका 3 चैप्टर, और मैं चले आपको 18 आयत से पढ़ देती हूँ, 18 से 20 आयत, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। हम खुदा के पास पहुंच नहीं सकते थे। खुदा को नाराज़ करना कोई आम सी बात नहीं है। आदम ने जो खुदा को नाराज़ कर दिया था वो आम सी बात नहीं हुई थी, वो बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। लेकिन यीशु मसीह जो कि रास्तबाज था, रास्तबाज ने नारास्तों की खातिर उनके गुनाहों की बाइस एक बार
जान दी। और अगर यीशु मसीह, जैसे कि आपको पता है कि कंवारी से पैदा हुए, खुदावंद यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुए, लेकिन कैसे पैदा हुए थे? पाक रूह की कुदरत उनके कंवारी के ऊपर नाजिल हुई, माँ मरियम के ऊपर। जब फरिश्ते ने आके पैगाम दिया था तो फरिश्ते ने कहा था कि रूह कुद्स तुझ पे नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी और मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो ये बताएं डीएनए कहाँ से आया? ये डीएनए, जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, सबके अंदर अपने अपने माँ बाप का डीएनए होता है। ये डीएनए यीशु मसीह के अंदर कौन सा था? खुदा बाप का। तो खुदा बाप का जो डीएनए था वो यीशु मसीह के अंदर था, यानी कि ब्लड कौन सा था? पाक ब्लड था, साफ ब्लड था, पवित्र ब्लड था। इस ब्लड का साथ पूरी दुनिया के कोई शख्स का ब्लड नहीं मिल सकता था। और यही वजह थी कि यीशु मसीह हमारी खातिर अपनी जान दे सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, नारास्तों के लिए, यानी कि क्योंकि वो खुद रास्तबाज था, उसका खून जो था खुद पाक था। अगर नापाक खून होता तो वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता था, पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा कभी नहीं बन सकता था। मगर यीशु मसीह ने अपना पाक खून लेकर और हमारे लिए स्लीब के ऊपर अपनी जान दी। और वो खुदावंद यीशु मसीह जो थे खुद स्लीब के ऊपर जान देकर उन्होंने हमें खरीद लिया, परचेज किया है। यीशु ने हमें परचेज किया है, हमें हमारी कीमत अदा की है, हमें कीमत से खरीदा है। और क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यशायाह नबी के सहीफे में, कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। और जब वो हमारी खातिर दुख उठाएगा तो अपनी नस्ल को देखेगा, नस्ल को, हम उसकी नस्ल हैं। क्यों देखा खुदावंद ने? क्योंकि वो कुचला गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कुचले जाकर अपनी नस्ल को देखा है। कुचले जाना का जो प्रोसेस है ना, आपको पता है वो कितना मुश्किल होता है, ठीक है? बहुत बड़ी तकलीफ में से गुजरना पड़ता है। जब आप अपने हाथ से किसी भी पत्ते को यूं करके कुचलते हैं ना, ऐसे करके, तो फिर उसकी खुशबू आती है। खुदावंद यीशु मसीह भी कुचले गए थे ताकि खुदावंद यीशु मसीह की खुशबू है। हम सारे जितने हम हैं, हम यीशु की खुशबू हैं और उसकी नस्ल हैं, ठीक है? और इसी वजह से कि यीशु कुचले गए थे, तो यीशु कुचले जाने की वजह से अब ऐसा है कि वो हमें देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद लिखा है वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, जिस्म के एतबार से यीशु मर गए थे, मरे, स्लीब के ऊपर मर गए, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी। जो उस अगले ज़माने में नाफरमान कौन थी? जिनको खुदा का पता ही नहीं था। जैसे इब्राहिम, दाऊद बादशाह, उनके सारे जो लोग थे जो कुर्बानियाँ करते थे, जो हैकल में होते थे, उनकी बात नहीं हो रही। वो खुदा के लोग थे, वो खुदा के लिए सारा दिन गुजारते थे, वो खुदा के लिए सारे काम करते थे। लेकिन ये कुछ जो रूहें थी जिनको, क्योंकि खुदा जो है वो इंसाफ करने वाला है, और खुदा कभी भी किसी को बगैर जैसे कलाम सुनाए बगैर ऐसा नहीं होगा। कलाम सब तक पहुंचेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हर घुटना उसके आगे झुकेगा। कलाम जो था जिनके तक नहीं पहुंचा, वहां पे जाके यीशु मसीह ने मुनादी की उन 3 दिनों में। जब आप समझते हैं ना कि यीशु कब्र में थे, कब्र में नहीं थे, यीशु कब्र में नहीं थे। मैं फिर से बार बार आपको कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह कब्र में नहीं थे, बल्कि उनको वो आलम अरवा में थे, वहां पर वो मुनादी कर रहे थे, ठीक है? कौन से दिन था ये? जबकि यीशु मर चुके हैं और कब्र में भी 2-3 दिन, ये नहीं कि कब्र में चलो कोई बात नहीं रेस्ट कर लूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाप की मर्जी को पूरा करने आए थे, बाप को खुश करने के लिए ज़मीन के ऊपर आए थे, बाप का काम करने आए, बाप का हुक्म मानने आए। इसलिए हम देखते हैं कि वो 12 साल की उम्र से हमने देखा उनको, बल्कि मैं नहीं कहूँगी कि 12 साल से ही खुदावंद शुरू हुए थे, ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जब से पैदा हुए तब से अपने कामों के वसीला से वो बता रहे थे। इसी वजह से माँ मरियम ने, आपको पता है कि माँ मरियम ने काना गलील की शादी में यीशु ने कहा कि नहीं मेरा वक्त नहीं आया, तो उन्होंने कहा नहीं जो ये कहता है करो, क्योंकि माँ मरियम के सामने रोज़ बहुत से मोजज़े होते होंगे खुदावंद यीशु मसीह के। जब से लेके खुदावंद यीशु मसीह माँ मरियम की गोद में पड़े थे, तो तब से लेके, और खुदावंद यीशु जो थे वो तब से लेकर ही अपने बाप की मर्जी पूरी कर रहे थे। और यही चीज़ हमने सीखनी है, हमने भी ऐसा करना है। हम ज़मीन पे इसलिए नहीं आए हैं कि बेशक आज का दिन जैसे खूबसूरत कपड़े भी हम पहन रहे हैं, अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं,
मिलना जुलना, दोस्तों से खुश होना, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप कभी भी ना भूलिए कि मेन जो काम है ना, जो आप करने आए हैं, वो खुदावंद का काम करने आए। जैसे यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र से ही वो ड्यूटी जो ये खुदा ने उनको दी थी वो पूरी की थी, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने वो ड्यूटी पूरी कर ली और फिर उनके वसीला से यानी कि ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बन गए खुदावंद यीशु मसीह, ठीक है। और उन्होंने लिखा पहला आदमी जो था वो जिंदा नफ्स बना और पिछला आदमी जो है वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। ये ज़िंदगी बख्शने वाली यानी हमें ज़िंदगी बख्श दी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के वसीला से, अपने स्लीप के ऊपर दुख उठाने के वसीला से हमें ज़िंदगी बख्शी है। तो खुदावंद के ये ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी को जो हमें दी गई है, इसको खूबसूरत तरीके से बसर करें, इसको ऐसे बसर करें कि ये खुदावंद की दी हुई है। और जब आप खुदावंद के सामने जाएं तो आप शर्मिंदा ना हो। आपके खुदावंद मैंने ये काम भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी करने की कोशिश की। और मैं ज़रूर आपको एक अपनी टेस्टिमनी ज़रूर बताऊंगी आपको इनकरेज करने के लिए। मैं 96 की तकरीबन बात कर रही हूँ, 96-97 की बात है ये। और मेरा जो था उन दिनों में ब्लड जो था मेरा 4.5 पे आ गया था, यानी कि 4.5 7 क्योंकि एक औरत में होता है तकरीबन 15 ग्राम होता है ब्लड। और 15 ग्राम जो ब्लड होता है उसमें एक अगर 7 ग्राम रह जाता है, क्योंकि औरतें अमूमन आपको पता है खाने पीने का अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो जब 7 ग्राम्स रह जाता है ना तो औरत बेहोश हो जाती है, ऑक्सीजन लग जाती है। लेकिन 4 ग्राम्स पे भी मेरे खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ था। और खुदावंद ने मुझे बहुत सी मेडिसिन दी गई, मुझे इंजेक्शंस लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यीशु ने अपने पाक लहू के वसीला से, मैंने गीत गाया था यीशु के खून के चश्मे को जो बहता है कलवरी से, और जब मैं ये गा रही थी तो खुदावंद के जो अनॉइंटिंग थी वो मेरे अंदर आई और खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी और मैं उठी और उसके बाद मैं चलने फिरने लगी, अदरवाइज़ मैं चल फिर भी नहीं सकती थी। तो मैं जब मैं अभी मेरा 7 पे आ गया था और मेरी बहन जो थी वो भी बड़ी हैरान थी कि 4 पे हमें नहीं समझ आती कि आप ज़िंदा कैसे हो, क्योंकि मेरी बहन मुझे हॉस्पिटल CMH से उठा के जो कि आर्मी का हॉस्पिटल था, तो वहाँ से उठा के मुझे ले गई शेख ज़ैद में। और उसका मतलब था कि मैं शेख ज़ैद में मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि वाकई इसका टेस्ट इतना ही है, तो वाकई इतना ही था, क्योंकि वो समझ रही थी शायद इनके टेस्ट सही नहीं है, क्योंकि ये बंदी सही है और ना ऑक्सीजन लगी है, सांस भी ले रही है। सिर्फ ये था कि मैं बोल नहीं सकती थी ज़्यादा, ना मैं किसी की बातें सुन सकती थी और मैं पाँव अपना ना बेड से नीचे नहीं थी उतार सकती। लेकिन खुदावंद ने मुझे बिल्कुल ठीक, वैसे अदरवाइज़ मुझे खुदावंद ने ठीक रखा हुआ था। और ये हुआ कि मेरी बहन फिर मुझे वापस ले आई जब उसने देखा कि ब्लड का जो टेस्ट है वही है, और फिर मुझे वापस ले आई, क्योंकि शेख ज़ैद में बहुत बड़ा बिल बनना था, CMH में हमें फ्री था, तो इस वजह से फिर वापस ले आई। अच्छा, अब ये देखें कि जिस वक्त मैं 7.5 पे थी, अभी भी मेरा कोई इतना अच्छा हाल नहीं था। खुदावंद ने मुझे इसी काबिल सिर्फ किया था कि मैं चल फिर सकूं, ये उसकी मर्ज़ी होती है। चाहता तो वो मुझे उसी वक्त भी ठीक कर सकता था, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी होती है और मैंने देखना होता है खुदावंद ने कि ये बंदा अगर बीमार है तो मेरा काम कितना करता है। तो जब मैं उस हालत में भी मैंने अपनी जो मेरे हस्बैंड के बहन भाई थे उनको अपने घर में बुलाया और मैं उनके साथ मेहनत करती थी, उनको कलाम सिखाती थी, उनके लिए वैसे घर के काम वगैरह में उनकी मदद करनी, पढ़ाई में जिस तरह से भी खुदा मुझे देता था और मैं करती थी और खुशी के साथ करती थी। और तब मैं खुशी के साथ क्योंकि खुदा का काम करती थी, और ये भी मेरे लिए बहुत था कि मैं बोलती थी। अभी भी जैसे मैं बीमार होती हूँ और मैं अपने ग्रुप में लोगों को कह दिया अब आज नहीं मैंने बोलना, क्योंकि मुझे पता होता है कि आज नहीं मैं बोल सकती। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उस वक्त भी मेरी यही हालत थी, मगर फिर भी मैं बोलती थी, मैं उठती थी, उनके साथ बात करनी है। 9 o'clock नाश्ता हम करते थे, 12 बजे तक हम लोग नाश्ते की टेबल से उठते थे, क्योंकि मेरी उनके साथ किसी न किसी तरह से बहस हो जाती थी, बातचीत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और हम लोग करते थे। और उसी वजह से फिर हम लोग 3-3 घंटे मैं उनको खुदा का कलाम बताती थी, उनको असलियत बताती थी कि खुदा क्या है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे फिर ख्वाब दी इन्हीं दिनों में, जब मैं कि बहुत मेहनत कर रही थी उनके साथ। तो खुदावंद ने मुझे ख्वाब दी कि बीच में खुदा खुद है और साइड पे फरिश्ते हैं, और मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ पता चल रहा है कि ये यहाँ पे खुदा है, यहाँ पे फरिश्ते हैं। मेरी किताब जो खुली हुई है वो मुझे नज़र आ रही है, और फरिश्ते मेरी रिपोर्ट खुदा को क्या कर दे रहे हैं
کہ ہم نے جیسے اس کو کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا ہے اور ہم اس سے خوش ہیں. یعنی کہ کیا کہا تھا، یعنی مجھے آ کے میرے کان میں فرشتے نے یہ نہیں تھا کہا کہ تو نے کام کرنا، یہ نہیں تھا کہا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں بے شک بیمار بھی ہوں نا تو میں نے کام کرنا خدا کا، میں نے خدا کے کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے. اور خدا نے اسی طرح سے پھر مجھے برکت دی، اور میرے ان کو بھی بہت خداوند نے برکت دی، میرے فیملی کو. تو خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے. اس خوبصورت دن میں اگر آپ یہی سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو خدا کا کام ہر صورت میں کرنا ہے، کسی بھی طرح سے اپنے خداوند کے آگے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا، جیسے یسوع مسیح نے کیا. یسوع مسیح نے مرنے کے بعد بھی خدا کے کام کو جاری و ساری رکھا اور پھر وہ مریم کے اوپر ظاہر ہوئے. تو خداوند آپ کو بھی اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. ایک دعا پھر آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین آمین آمین. جی بھائی جنید آپ دعا کیجئے اور اس کے بعد بھائی جو ہیں وہ ہمارے باپ کی دعا کریں گے اور ہم اینڈ کریں گے. हालेलुया. खुदा बाप का बेटे खुदा रूह कुदस पाक खुदा, खुदावंद हम शुक्र गुजारी करते हैं सारी खुदावंद इस मोहब्बत के लिए जो आपके पास में देखी, यस और उस मोहब्बत के वसीले पाप पाई, हमने निजात पाई, हमने माफी पाई, यस और लॉर्ड. खुदावंद हमने खुदावंद आपसे सब कुछ वो पाया ताकि हम वो सब कुछ ना करें जिसके वसीले से यीशु जी हम वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए. यस आपने सब कुछ हमारे वास्ते दिया, आपने सारी वो बातें जिनको हम फेस ना कर सके यस बल्कि आप उनको फेस करें और हम फिर सुकून में रहें. खुदावंद हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं. यस और फिर तीसरे दिन आपने उस मौत की बादशाही को नेस्त नबूद कर दिया और खुदावंद उस शैतान को हराया और खुदावंद आपने विक्ट्री पाई. आमीन. आपने विक्ट्रियस हो गई सारी दुनिया में चीज को जाहिर किया कि आप जिंदा और जलाली कदूस खुदावंद हो. यस जो थैंक यू आप पर ईमान जीसस. लाएगा वो लाख ना होगा बल्कि हमेशा की पाएगा. जिंदगी पाए. और खुदावंद हम सब जिंदगी पाए और सारे कसरत जिंदगी पाए और खुदावंद आप करें और खुदावंद आपके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करें ताकि ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं ये तब्दील हो और पीस और लव का साइन ब्लिंक करता दिखाई दे और सब जाने कि उस खुदावंद ने अपने जलाली हाथ को फिर बढ़ाया है सारी दुनिया के वास्ते. और आमीन. खुदावंद हम चाहते हैं कि अपने जलाली हाथ को बढ़ाओ, आज रेजरेक्शन में बहाल कर दो, जकड़े आजाद कर दो, बहना दो तो में इसको और वो प्यार की एकदम से जाहिर हो कि आपके आमीन. आपकी डाल आवाज पाए दिला से ये थैंक यू जीसस. जी भाई आप दुआ रबानी कीजिए. भाई की आवाज़ काफ़ी देर से बंद हुई है. दुआ रबानी कीजिए. जी मेरा तुम्हारी 4 बार उसका शायद से ऐसा है कि खुदा तुम मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तुम मेरी खतों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तुम मुझे बचा जो मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है. रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. थैंक यू जीसस. हम सबको मुझे हाथ बना के रख हर घर में कुछ तमाम के लिए और जितने भी लीग टी हैं उन पे उनकी फैमिली फ्रेंड्स आमीन आमीन. हमारी रोज की रोटी आज हमें दें और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं आप भी करें. आमीन. अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रही जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए. खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो, आपको महफूज रखे. खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए
اور آپ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے مسیح یسوع کے نام سے. اور ہم سب کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. گاڈ بلیس یو آل. بائے.